یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ آرمی چیف کی سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ تیاری، دہشت گرد عناصر کے خلاف اقدامات پر بریفنگ۔ آرمی چیف کا ملک سے متشدد عناصر کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج نے مشکلات کے باوجود ملکی سرحدوں کا دفاع کیا۔ قوم کو اپنی مسلح افواج کی قربانیوں پر فخر ہے۔ صدر مملکت۔ ماضی میں ڈیمز نہ بنانے سے ملک کا نقصان ہوا۔ ڈیمز بنائے جاتے تو بجلی مہنگی نہ ہوتی۔ ہمیں تیل درآمد کر کے مہنگی بجلی پیدا کرنی پڑ رہی ہے۔ نئے آبی ذخائر کی تعمیر کے حوالے سے صوبوں کے خدشات دور کرنا ہوں گے۔ چین 5000 ڈیمز بنا چکا ہے۔ ان کی کامیابی کا راز طویل المدتی منصوبہ بندی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان میں ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بین الاقوامی سمپوزیم سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ سب چور اکٹھے ہیں اور آج سب نے دیکھ بھی لیا۔ جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، ملک ان کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد ضرور پیش کرے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اپوزیشن کی اپنی صفوں میں یکسوئی نہیں۔ وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے تحریک انصاف نے نئے اصول وضع کیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ دو 2018 کی طرح خیبر پختونخوا کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کو پھر مسترد کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ایک طبقہ بار بار من گھڑت خبریں پھیلا رہا ہے۔ عدم اعتماد سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اپوزیشن اپنے اراکین کی فکر کرے۔ وزیر مملکت اطلاعات فرخ عبید کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ اور حکومت پاکستان نے 1 فروری سے احساس کے پیسے 12,000 سے بڑھا کر 13,000 کر دیے ہیں۔ احساس ادائیگیوں میں ناجائز کٹوتیاں کرنے والے ایجنٹوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا ویڈیو پیغام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ پاک چین دوستی کی شاندار روایات کا ایک اور سنہری باب، وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب دورہ چین۔ دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کا خطے میں استحکام اور مشترکہ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور عزم کا اظہار۔ ٹیکسٹائل، زراعت اور آئی ٹی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت سی پیک فیز 2 تیز کرنے پر اتفاق۔ اقتصادی زونز میں چینی کمپنیوں کی منتقلی، فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں نئی آسانیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط، دو طرفہ باہمی اعتماد کا تاریخی مظہر۔
عالمی و علاقائی سطح پر مشترکہ مستقبل کی طرف گامزن، پاک چین دوستی کے 70 سال۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے ماضی میں ڈیمز نہ بنانے سے نقصان ہوا، اگر ڈیمز بنائے جاتے تو بجلی مہنگی نہ ہوتی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چین 5000 ڈیمز بنا چکا ہے اور چین کی ترقی کا راز طویل المدتی منصوبہ بندی ہے۔ اسلام آباد میں سمپوزیم سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اور خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہم اگلے انتخابات کا نہیں بلکہ طویل المدتی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسد یار خان۔ پاکستان میں ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہونے والے بین الاقوامی سمپوزیم میں امریکہ اور چین سمیت مختلف ملکوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ملک میں 10 نئے بڑے آبی منصوبوں کی تعمیر کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج ہمیں تیل درآمد کر کے مہنگی بجلی پیدا کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا، ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے۔ ڈیکیڈ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج۔ جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشت کرنا پڑے گا، تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے، پانی کی کمی ہے، تو یہ جو 10 سال کی ڈیمز ہیں، اس سے سٹوریج دگنی ہو جائے گی۔ اگر ہم پانی کے اوپر بجلی بنا لیتے، جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہر چیلنج سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نئے آبی ذخائر کی تعمیر کے حوالے سے فیصلہ تمام اکائیوں کو اعتماد میں لے کر کیا جائے گا۔ جو ہمارے سندھ کے بھائی ہیں، جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف قوتیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا، تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے، ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باغ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا۔ تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا۔ ہمارا آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ آبی وسائل کے وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا کہ سلٹنگ کے باعث ملک کے 2 بڑے ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہو رہی ہے۔ نئے آبی ذخائر کی تعمیر وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، فکر مندی کی کوئی بات نہیں۔ چیئرمین بابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے بتایا کہ بابڈا 2028 تک پانی ذخیرہ کرنے اور پن بجلی کے 10 منصوبے مکمل کرے گا۔ بین الاقوامی کمیشن کے صدر مائیکل راجرز، جو دیامر بادشاہ ڈیم کی تکنیکی ٹیم کے رکن بھی ہیں، نے بتایا کہ یہ ڈیم دنیا میں RCC کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ بابڈا 2018 سے 2028 کے درمیانی عرصے کو ڈیموں کی دہائی کے طور پر منا رہا ہے، جس سے ملک میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 9406 میگا واٹ سے بڑھ کر 20802 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی 13.6 ملین ایکڑ فٹ سے بڑھ کر 25.3 MAF ہو جائے گی۔ ان منصوبوں سے استعداد کار میں اضافے کے ساتھ روزگار کے 35,000 نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی غیر قانونی اقدام تمام عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بدترین انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ امریکی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گرد پیدا ہوئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور سنگیانگ کے معاملے کا تقابلی جائزہ ہی سرے سے غلط ہے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے۔ بھارت میں شدت پسند RSS نظریاتی حاوی ہیں۔ About 100,000 Kashmiris have died. Since 5th August, the Indians have revoked the status of Kashmir, which unilaterally, which is, according to the United Nations Security Council, a disputed territory between Pakistan and India. There are extrajudicial killings going on. There are no rights there. There's clampdown there.
800,000 Indian troops in the Kashmir Valley. And I'm afraid it just doesn't get the attention it deserves. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में इस वक्त अफगान अवाम की बका का सवाल है, जिसमें से निस्फ गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान से मुंह मोड़ लिया जाता है तो फिर खदशा है कि अफगानिस्तान अफरा तफरी का शिकार हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पहले ही 30 लाख अफगान पनाहगज़ीन मौजूद हैं, मजीद मुहाजिरीन के हम मुतामिल नहीं हो सकते। The only alternative we have right now is to work with them and incentivize them in what the world wants, inclusive government, human rights, women's rights in particular. That's the only way forward right now. And the flip side is, if they are abandoned or these sanctions stay there and the banking system has no liquidity left because of the sanctions, then the worry is that Afghanistan could go into chaos, humanitarian crisis, chaos. And then from Pakistan's point of view, we face two problems. We already have 3 million Afghan refugees. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दुनिया भर में दहशतगर्द पैदा हुए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। ताहम ड्रोन हमलों में बहुत से मासूम शहरी मारे गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंतकामी तौर पर खुदकश हमले हुए। अमेरिका को अपनी ड्रोन पॉलिसी को बदलना होगा। We had 80,000 people dying in this joining the US war on terror. And we saw the war, as it went along, it produced more terrorists. And I'm convinced it's exactly the same what happened in Afghanistan. Because these night raids in Afghanistan, the drone attacks, really the United States must review this policy. We watched what happened here. Bombs exploding in villages. You know, how would they only get the terrorist? So there was a lot of collateral damage. So all the revenge attacks were against the Pakistani soldiers, against the people of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया एक बार फिर सर जंग की जानिब बढ़ रही है। बड़े मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए दुनिया को नई सर जंग से बचाएं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 9 जमशुदा अजला में ऑपरेशन के दौरान जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज हकीकत पेश किया है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्की सरहदों का दिफा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क से मुतशद्दिद अनासर के खात्मे के आज़म को दोहराया। उन्होंने सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना तैयारी, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार तेज करना है तो हमें खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। इस्लामाबाद में सिनफी मसावात के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि माशरे की जिम्मेदारी है वो सिनफी इम्तियाज जैसे रवैयों के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खवातीन को तमाम शोबाहाए जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम करके ही तरक्की की मंजिल हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम रोशन ख्याल मजहब है जिसने 1400 साल पहले औरत को उसका जायज मकाम दिलवाया। इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इन मईशत, इन माशरत, इन लेजिस्लेशन, इन राइट्स, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं, ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं। मगरिब की प्रोग्रेस पर मैं खुश हूँ, मगर हमारी अपनी जो विरासत है ऑफ आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी इज़ वेरी वेरी ओल्ड। लिहाजा मेहनत करके इस पाकिस्तान की तरक्की, जैसे कायदे आज़म ने कहा, मैं इंसिस्ट करता हूँ, बगैर औरत की शमूलियत के इसका इम्कान नहीं। सदर मुमलिकत ने कहा कि तरक्की निस्वा में तालीम की अहमियत कलीदी है। माशरे पर मजबूरी तौर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खवातीन के हवाले से इस्तेहसाली रवैयों का सद्देबाब करे। एम्पावरमेंट अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं, उस एम्पावरमेंट के अंदर औरत का तालीम याफ्ता होना बेइंतहा ज़रूरी है। जब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हुकूमत ने सरमायाकारी करके रखी है, औरत को माशी इंक्लूसिवनेस की तरफ उंगली पकड़ कर ले जाना पड़ेगा। माशरे के अंदर अगर छुपा हुआ औरत का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे,
ऊपर से लफाजी होती रहे, माशरा तमाशा देखे, माशरा वीडियोस बनाए, दैट इज़ नॉट पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट पाकिस्तान टू बी। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि विरासती कवानीन में इस्लाहात, आसान कर्जों की फराहमी और खवातीन को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए एहसास की छतरी तले मुख्तलिफ प्रोग्राम हुकूमत के मस्बत इकदामात हैं, जिनसे पाकिस्तान की निस्फ आबादी को मुल्की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के मौके पैदा हुए हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ दीगर अहम खबरें कैबिनेट आर का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। Live and exclusive, you're watching Winter Olympics 2022 on PTV Sports HD. From Beijing, China. Amidst chilling environment, the sweating athletes attempting to win the accolades, to lose some, to win some. Eyeing Olympic goals. Story of hope and despair. Fiercest competition. Swedish sister Hannah and Olivera Oberg go for biathlon gold. Vincent Zhou, an American figure skater, tests positive for COVID-19. Eileen Gu chasing the first 3 golds for China, qualifying for the big air final. Broadcast coverage includes curling and luge. Max Parrott of Canada wins gold in men's snowboarding slopestyle. What are the blue lines on the snow? Your biggest skiing question answered. Boot Food wins the men downhill by 10th of a second. The action continues. From February 4th until February 20th, 2022. Each day, every day live and exclusive on PTV Sports HD. कैबिनेट आवर में आपको आगाह करें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत जुमे की सुबह 10:30 बजे तलब किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत जुमे की सुबह 10:30 बजे तलब किया है। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी 9 रुकनी वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला अपने दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है, ज़रूर पेश करें, हम मुकाबला करेंगे। अपोजिशन की सफ़ों में यकसोई नहीं। मज़ीद बता रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। मुल्तान में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन के कामयाब दौरे के बाद अब वज़ीर आज़म रूस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, अमरीका समेत दुनिया उसकी मोतरिफ है। पहले वज़ीर आज़म चीन जाते हैं और फिर अब वो मॉस्को जा रहे हैं, तो क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी नहीं है? आपने देखा कि अफगानिस्तान का जो बहरान 15 अगस्त में अरूज पर था और वहाँ दुनिया का तकाजा था कि वहाँ पुरअमन इनखला में पाकिस्तान हमारी मदद करे। अल्लाह के फजलो करम से 90,000 वहाँ फॉरेन नेशनल्स को, इंटरनेशनल एनजीओज को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को के नुमाइंदगान को, मीडिया को निकालने में दफ्तर खारजा ने जब अपना रोल प्ले किया है, दुनिया उसको सराह रही है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं मुस्कान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का चेहरा वाज़े हो गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत
काश्तकारों को फसलों की बेहतरीन कीमतें दी गईं। हुकूमत ने खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को गैस फराहमी जारी रखी ताकि किसानों को खाद मिल सके। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 26 फरवरी को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत करूंगा। आज भी ऑपोजिशन गो म गो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वजीर खारजा ने कहा कि वजीर आजम उम्मीदवार खुद नामजद करेंगे। उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ की फतह से मौलाना साहब को इशारा मिल गया है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शहबाज शरीफ कभी फजल रहमान तो कभी किसी और से मुलाकातें कर रहे हैं। सियासी उमूर पर पिंड दादन खान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सब चोर इकट्ठे हैं और आज सबने देख भी लिया। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, मुल्क उनके हवाले कैसे किया जा सकता है। चौधरी फवाद हुसैन ने मईशत जिनकी वजह से खराब हुई वो कह रहे हैं महंगाई हुई। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के मजदूर और ताजिर को लूटा गया, जब तक लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आता नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी ओवरसीज डॉक्टर अब्दुल्ला रियार ने मुलाकात की है। मुलाकात में इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के 3 रोज़ा कन्वेंशन के इनेकाद और तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने पर शुक्रिया इमरान खान के उन्वान से इश्तिहारी मुहिम के खदोखाल पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI ने वोट का हक देकर समंदर पार पाकिस्तानियों से अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत से मुल्क की मईशत की बका और तसलसल में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और 3 रोज़ा ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन को खुशामदीद कहेंगे। मुआवनी खुसूसी सिलेंडर सानिया निश्तर ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी से एहसास के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिए हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि एहसास अदायगियों में नाजायज़ कटौतियाँ करने वाले एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि अहल ख़वातीन अब एहसास कफालत के पैसे लेने जाएँ तो गिन कर पूरे 13,000 लें। शराकती बैंक्स के एजेंट और नामजद दुकानदार ख़वातीन के पैसे नहीं काट सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी से एहसास के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिए हैं, तो जो ख़वातीन भी अब एहसास किफ़ालत के पैसे लेने जाएं वो 13,000 लें और गिन कर पूरे पैसे लें। पूरे पैसों का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें शिकायत मिल रही हैं कि एजेंट और दुकानदार ख़वातीन के पैसे काट लेते हैं। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रकम यानी कि 13,000 रुपए में से कोई भी आपके पैसे नहीं काट सकता। अगर आपसे पैसे देने वाली दुकान पर या कैंप में कोई एजेंट या दुकानदार या पुलिस वाला या कोई और शख्स भी पैसे मांगे तो हरगिज इसको पैसे ना दें। मेरे नोटिस में ये भी आया है कि दुकानदार ख़वातीन के अंगूठे लगवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि पैसे लेने के लिए कल आओ। जब आप अंगूठा लगाएं तो मशीन के स्क्रीन पर जरूर देखें और अगर आपको ये निशान दिखाई दे रहा है जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पैसे आ गए हैं। और अगर इस निशान को देखने के बाद आपको एजेंट ये कहे कि आप कल आएं तो आप उसकी हरगिज बात ना माने, आप पैसे लेकर ही वहां से जाएं और उससे रसीद भी मांगे। मैं आज बदउन्वान अनासिर से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी के पैसे काटे या आपने जाली अंगूठों का इस्तेमाल किया तो हुकूमत आपसे बहुत सख्ती से निपटेगी। ख़वातीन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी बहुत अहम है कि आपको पता हो कि एहसास का SMS सिर्फ 8171 से ही आता है। अगर आपको मैसेज किसी और नंबर से आए जिसमें किसी और नंबर पर कॉल करने का कहा गया हो तो वो सरासर जाली मैसेज है। आप फौरन वो नंबर इन नंबरों पर SMS के जरिए भेजें जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि ज़रदारी माफिया का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। नवाब शाह धरने में बैठे मुजाहिरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिलावल हाउस की हिदायत पर पुलिस ने मुजरमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अली हसन जरदारी और मोहसिन जरदारी को FIR में नामजद करने से गुरेज कर रही है।
معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے افغانستان کے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عواد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صحت کے شعبے سمیت افغانستان میں ہیلتھ سروسز کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ضروری ہے پولیو کی بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان مل کر ہی اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہیلتھ سروسز کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ملاقات میں سرطان کے علاج اور افغانستان میں میڈیکل کی تعلیم پر بھی بات چیت کی گئی۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 29 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک میں کل اموات کی تعداد 29,801 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 47,307 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,662 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.62% رہی۔ اس وقت ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 76,639 ہے، جن میں سے 1,566 کی حالت تشویشناک ہے۔ بات کریں گے کچھ بلدیاتی انتخابات میں ری پولنگ کے حوالے سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میئرشپ پر پاکستان تحریک انصاف کی عمر امین گنڈاپور نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق عمر امین گنڈاپور نے 63,753 ووٹ لیے۔ جے یو آئی فے کے امیدوار کفیل احمد نے 38,891 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل کریم کنڈی 32,788 ووٹ لے سکے۔ اس طرح عمر امین گنڈاپور نے جے یو آئی ایف کے امیدوار سے 24,862 کی واضح بڑھتری حاصل کر کے سٹی میئرشپ حاصل کر لی۔ جے یو آئی کا گڑھ سمجھا جانے والا ڈیرہ اسماعیل خان تمام تحصیلوں میں جے یو آئی بری طرح ناکام رہی اور چیئرمین شپ کی ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی، جبکہ یہاں پارٹی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ سٹی میئر کی نشست سمیت پاکستان تحریک انصاف کے پاس 3 نشستیں ہیں۔ 2 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، جبکہ ایک سیٹ پر جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق عبید نے کہا ہے کہ 2018 کی طرح خیبر پختونخوا کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کو پھر مسترد کر دیا ہے، جنہیں عمر امین گنڈاپور نے بدترین شکست دی ہے۔ اسلام آباد میں سینیٹر فیصل جاوید کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق عبید نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے ختم ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کرک سے 3، بنو سے 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار بااختیار بلدیاتی نظام دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پارٹی اور اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم عمران خان پر مکمل اعتماد ہے۔ اپوزیشن کے نمبرز پورے ہوں گے، نہ ہی ان کا حکومت ہٹاؤ مشن کامیاب ہوگا۔ لاہور میں پارٹی وفود سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد سرور نے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کی حکومت کو 5 سال حکومت کا مینڈیٹ دیا ہے۔ اپوزیشن خواب ہی دیکھتی رہ جائے گی اور 2023 کا الیکشن آ جائے گا۔ گورنر نے کہا کہ ملک میں یکساں ترقی حکومت کا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ میاں چنو افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان قانون کے مطابق سخت سزا کے حقدار ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ انتہائی دلخراش اور قابل مذمت ہے، جہاں بھی پولیس کی غفلت ثابت ہوئی کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے گنگا رام اسپتال لاہور میں مدر چائلڈ سینٹر کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں 7 ارب روپے کی لاگت سے آپریشن تھیٹرز اور نئے شعبے بنائے جا رہے ہیں، جس سے گائنی اور دوسرے امراض میں مبتلا لوگوں کو جدید سہولتیں میسر آئیں گی۔ حسان خاور نے کہا کہ پنجاب میں ماں بچے کی صحت اور نگہداشت کے لیے مدر اینڈ چائلڈ سینٹر، نئے اسپتال اور 158 ہیلتھ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین وزیر بحری امور علی زیدی کے گھر گئے اور ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے شہریوں کو اچھی خدمات فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی پروگرام کے تحت ضلع اوکاڑہ کی تحصیل رنالہ خورد کے
दो वार्ड्स में 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से शहरियों को बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी तेजी से जारी है। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद अशरफ। उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द के 2 वार्ड्स में 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से गलियों में टफ टाइल लगाने का काम तेजी से जारी है। अब तक वेलकम रोड, मॉडल स्कूल रोड और सदर बाजार में टफ टाइल लगा दी गई हैं, जबकि थाना बाजार में टफ टाइल लगाने का काम 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। साइडों पे बाजारों को कुशादा करने के लिए हम इंक्रोचमेंट और तजावजात वगैरह का मुस्तकिल खात्मा करने के लिए साइडों पे हम 60 mm की टाइल लगा रहे हैं। टफ टाइल का पैकेज जो है वो 30 साल से पहले कभी इस तरह का काम नहीं हुआ जो आज रनाला खुर्द की आवाम के लिए ये काम हुआ है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट का जिन्होंने ये हमें टफ टाइल मंसूबा दिया। 2 लाख मुरबा फुट पर लगाई जाने वाली टफ टाइल से रिनाला खुर्द और इससे मुल्हिका आबादियों की 1 लाख से ज्यादा आबादी को फायदा होने से उनका मियारे जिंदगी बुलंद हुआ है। शहरी और देही इलाकों में बुनियादी शहरी सहूलतों की यकसा तौर पर फराहमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। पसमानदा रह जाने वाले इलाकों में शहरी सहूलतों की फराहमी वज़ीर आज़म की तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के विजन की तकमील है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। सहराए चोलिस्तान में होने वाली 17वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर दिलवश के मकाम पर ट्रेड फेयर एंड फूड कोर्ट के स्टॉल सजाए गए। कोर कमांडर बहावलपुर ने कमिश्नर बहावलपुर के हमरा इन स्टॉल्स का मुआयना किया। मजीद तफसील बताएंगे मुख्तार अंजम। इलाकाई सकाफती अशिया को फ़रोग़ देने के लिए किला ड्रावर के मकाम दिलवश पर खुसूसी स्टॉल्स कायम किए गए, जिसका एहतमाम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दस्तकारी के आला नमूने, मट्टी के बर्तन, खड्डी के कपड़े, चुनरी के लिबास और खजूर के पत्तों से बनाई घरेलू इस्तेमाल की अशिया लोगों की खसूसी तवज्जो का मरकज थी। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, हमारी मेहनत की, हमारी जो है चीज़ों की, हमारे आर्ट की कदर कर रहे हैं। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया ने कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के हमरा दौरा किया और स्टॉल्स पर मौजूद अशिया पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इसमें बहावलपुर के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहावलपुर का जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, जो नेचुरल पोटेंशियल है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, उसको यहाँ पर हमने शोकेस किया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से सजाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स लोगों की खसूसी तवज्जो का मरकज थे। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है हमने घर पे मौजूद हैं। आर्ट लगा हुआ है, इधर कोई कल्चरल ड्रेसेस बेच रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग कराची से यहाँ पे खुसूसी तौर पे जीप रैली को एंजॉय करने के लिए आए हैं। चोलिस्तान में जीप रैली का मेगा इवेंट मुनक्किद कराने का बुनियादी मकसद यहाँ की सियाहत को भरपूर अंदाज से उजागर करना है और मुल्क भर से लाखों सियाहों के शरीक होने से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर हुआ है। और अब कुछ बात करते हैं कैफेज की जो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के शहर कोयटा में एक अनोखा अदबी कैफे लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। ये कैसा कैफे है, इस हवाले से बताएंगी सना सलीम। लाइब्रेरीज़ का रुझान जहां ख़त्म होता जा रहा है, वहीं ऐसे मकामात भी ना होने के बराबर हैं जहां इस्लाही बहस मुबाइसों के मौके मिल सकें। ऐसा कोई कैफ़े वगैरह बन जाए यहाँ पे, और उसके साथ कोई एक लाइब्रेरी हम बना दें, या स्टूडेंट्स बैठ के अपना चाय वगैरह और खाने के साथ अपना जो है ना वो बुक्स भी पढ़ सकें। बस फिर मैंने इसको कंबाइन करके ये मतलब जो आइडिया था या प्लान था, इसको मैंने अमली शक्ल दे दी। कैफ़े में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चाय की चुस्कियों के साथ साथ किताबों और पुरसकून माहौल से भी महसूस होते हैं। कोयटा में ऐसे बहुत कम जगह मिलते हैं जहाँ पे हम लोग मतलब क्लास से आए या क्लासमेट आए सर, यहाँ पे डिस्कशन करे या कोई टॉपिक पे, यहाँ पे मतलब ऐसा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने जैसे मतलब घर। फहद का कहना है कि वो चाहते हैं शहर में ऐसे कैफ़े और लाइब्रेरीज का क़याम ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लोगों में किताब दोस्ती जिंदा रह सके। सना सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। मस्जिद, मंदिर और मज़ार, उडेरो लाल का शहर। मारूफ बुजुर्ग हस्ती उडेरो लाल को मुसलमान इस्लाम का जबकि हिंदू अपने मजहब का पैरोकार समझते हैं। उडेरो लाल के मज़ार पर मुसलमान फातिहा ख़्वानी और हिंदू अपने मजहबी अंदाज से अक़ीदत का इजहार करते हैं। इस बारे में बताएंगे अली असगर अरबाब।
सिंध के जिला मटियारी में हैदराबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर उडेरोलाल का शहर वाक़ है। ये शहर एक बुजुर्ग हस्ती के नाम से मंसूब है, जिसके बारे में मुसलमान इसे इस्लाम का पैरोकार जबकि हिंदू इसे भगवान का रूप समझते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक मुगलिया दौर में ये बुजुर्ग अपनी करामात के बायस मशहूर थे, जो नसरपुर में अपने पैदाइशी मकाम से यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर 4 मुसलमान भाई उनकी करामात से बेइंतहा मुतासिर हुए और इस बुजुर्ग को क़याम के लिए अपनी ज़मीन दी। मुजावर हूँ, मुतवली हूँ, वारिदार हूँ, गादी नशीन नहीं हूँ। किले नुमा चौदीवारी के अहाते में उडेरोलाल के मकबरे के दाएं तरफ मस्जिद और बाएं तरफ मंदिर तामीर किया गया। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में फ़ौज के पेशा वराना उमूर से मुतालिक गुफ्तगू हुई है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नवीद अजहर, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और फ़ौज के जो पेशा वराना अमूर हैं उनके हवाले से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और आज ही आर्मी चीफ ने इनसे पहले प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की थी। उसके बाद अभी प्रेसिडेंट से उनकी जो मुलाकात हुई उसमें फ़ौज के जो पेशा वराना अमूर हैं उनसे मुतल्लिक तफसीली बातचीत की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवीद अजहर, आप हमें आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है और इसमें पाक फ़ौज से मुतालिक पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में मस्जिद की, जो क़याम पाकिस्तान से कबल एक हिंदू ताजर ने तामीर करवाई थी। तफसीर बता रहे हैं जमाल साफ़ी। ये मस्जिद मर्दान के इलाके तख्तबाई में 1920 में एक हिंदू ताजर ने भाईचारे के तहत तामीर करवाई थी, जो कि पहले चमन मस्जिद के नाम से मशहूर थी। 1972 में इसका नाम तब्दील करके अल्लाह अकबर मस्जिद रखा गया। मस्जिद तामीर करने वाले हिंदू चमन लाल की यादें आज भी इस गाँव के बुजुर्गों के लबों पर है। आज भी इस मस्जिद में उस वक्त के कुछ आसार मौजूद है। अल्लाह अकबर मस्जिद के मोजिन हाजी पेंदा खान, जो चमन गाँव के रिहायशी है, बताते हैं कि चमन लाल निहायत ही नफीस इंसान थे और ये गाँव आज भी उनके नाम से मंसूब है। चमन लाल ने इस इलाके के मुसलमानों से अपनी मोहब्बत और अपनायत का एक ऐसा नमूना छोड़ा है जो रहती दुनिया तक रहेगा। चमन गाँव की तरह खैबर पख्तूनख्वा में आज भी ऐसी तारीखी जगह मौजूद है जिनको महफूज बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकीदों के मानने वाले लोगों के दरमियान मोहब्बत, अमन और भाईचारे की फिजा कायम रहे। जमाल साफ़ी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मर्दान। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।